Hello दोस्तों, welcome to my next lecture. This lecture is for political science plus 2 students and it is about Panchayati Raj system or democracy at grassroots level. Actually, the concept of Panchayati Raj in India means to take democracy to each and every house of the country. It means to give people the power to run their own government at local level, to be self dependent. So Panchayati Raj system is a concept that helps people to be their own ruler at all levels. It works at 3 levels: Panchayat, Block and Zilla Parishad. For state we have parliamentary system and for country also. So Panchayati Raj is basically local self-government, means running of the government at village level. Okay, it leads to self-dependence and the commitment to have a leader among themselves, right? Or different people are chosen. It has led to the decentralization of power. We will move further and we'll discuss it in detail. Welcome to YouTube channel MD Alam. Introduction. Panchayati Raj system, it is also known as village council, is a political system and it has originated from Indian subcontinent, and it is mainly found in the countries like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Traditionally, panchayat consisted of wise men and people who were respected in the society, and they were chosen by the local community. But now this Panchayati Raj system has become constitutional, and accordingly, as per the constitution, members, panch and sarpanches are chosen. Let's move to the next slide. First, we will do a brief history of Panchayat Raj in India. See, we have Panchayati Raj system. We had, in fact, in ancient time also, but here in modern concept we are going to discuss when it was adopted after independence. Especially the Panchayat Raj system was first adopted by the state of Bihar by Bihar Panchayat Raj Act 1947. It was a continued, एक लगातारता था ये लगातार में, it was a continued legacy of local self government started by Lord Ripon in British era. जो हिस्ट्री में ब्रिटिश एरा में लॉर्ड रिपन का बड़ा योगदान माना जाता है. लेटर इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय राजस्थान इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर, जो गांधी जी की जयंती होती है उस दिन, बर्थडे है गांधी जी का, 1959 इन राजस्थान इट वॉज अडॉप्टेड. राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ड्यूरिंग 1950s and 60s, other state governments adopted this system as laws were passed to establish panchayats in various states. In that sequence, the committee which was headed by Balwant Rai, it is known as Balwant Rai Mehta Committee. It was a committee appointed by the government of India in 1957 January, and it was appointed to examine the work of community development program that was started in 1952 and the National Extension Service 1953 to suggest measures to improve their work of Panchayati Raj system, right? So the committee's recommendations was implemented by NDC in January 1958, and this set the stage for the
launching of Panchayati Raj system. Establishment of it is a recommendation by the committee. The committee recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण पावर का, which finally came to be known as Panchayati Raj. So finally we see that it is a brief history, and that led to the establishment of a 3-tier Panchayati Raj system. हमारे यहाँ 3-tier Panchayati Raj system है, that we will discuss. बेस लेवल पे ग्राम पंचायत हैं, ग्राम सभा, राइट, ब्लॉक पे ब्लॉक समिति, और तीसरा लेवल है ज़िला परिषद का. तो ये विलेज लेवल पे, ये ब्लॉक लेवल पे, और ये ज़िला लेवल पे, ऐसे है 3-tier सिस्टम. ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ज़िला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ऑन 24 अप्रैल 1993 द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 92 केम इनटू फोर्स. 24 अप्रैल को 94 में जो 73rd अमेंडमेंट है पंचायती राज सिस्टम, वो फोर्स में आया. इन इंडिया इट वाज, राइट, केम इनटू फोर्स इन इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, या जिसको हम स्टेटस कहते हैं. दिस अमेंडमेंट वॉज एक्सटेंडेड टू पंचायत्स इन ट्राइबल एरियाज ऑफ 8 स्टेट्स, नेमली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान. राइट, बिगनिंग ऑन 24 सितंबर. यहाँ पे भी एक्सटेंड किया गया इन स्टेट्स में भी. दिस अमेंडमेंट contains provisions for the devolution of power and responsibility टू पंचायत. डिवोल्यूशन मतलब सौंपना एक्चुअली है, यहाँ पे उससे रिलेटेड है. तो ये अमेंडमेंट इसलिए था कि ताकि लोकल लेवल पे लोगों को पावर दिया जाए, पावर का डिवोल्यूशन किया जाए, बोथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स एंड सोशल जस्टिस इन द विलेजेस, as well as for implementation in relation to 29 subjects listed in 11th schedule of the constitution. अब 29 सब्जेक्ट्स जो है जो है उसको ये असाइन किया गया है, मतलब पंचायती राज सिस्टम को. एंड द एबिलिटी टू लेवी एंड कलेक्ट एप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज़, टोल्स एंड फीस, ये भी उनको दिया गया पावर. द एम टू प्रोवाइड अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2 million एंड टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस रेगुलरली एवरी 5 years. तो ये सारे प्रोविजंस आए थे मित्तल का अमेंडमेंट में, जो प्रोविज़न आए थे, राइट. ये सब्जेक्ट चुने गए, दिए गए, टैक्स एप्रोप्रिएशन, ड्यूटीज़ एंड फी, टोल्स वगैरह भी उनको दिया गया. द एम्स टू इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड, राइट, प्रोवाइड अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ओवर 2 million. सभी स्टेट्स को जिसमें 2 million 20 लाख से ज़्यादा आबादी है स्टेट में, वहाँ पे दिया गया है. टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली, ये भी अमेंडमेंट में बताया गया है. टू प्रोवाइड सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, इनके लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है. टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पंचायत, और एक कमेटी भी अपॉइंट की गई, बनाई गई, कमीशन बनाया गया, राइट. और इस तरह से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे to make recommendation regarding the financial power of the panchayats and to constitute a district planning committee, right. So these were the recommendations of these were actually mentioned in, these provisions were mentioned in this amendment. That this amendment is 73rd amendment of the constitution, keep in mind. Let's move to the next slide. Now, list of the committees constituted for recommendation regarding पंचायती राज in India. आज़ादी के बाद जो कमेटी बना, जो कि पंचायती राज सिस्टम के लिए रिकमेंडेशंस दी, वो ये कमेटीज़ थी. नाम याद रखना आप.
1957 में बनी बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर वीटी कृष्णमाचारी 1960 में कमीशन बना। उसके बाद है तख्तमल जैन स्टडी ग्रुप या तख्तामल। देन अशोक मेहता कमेटी 1978, GVK राव कमेटी 1985 एंड डॉक्टर LM संघवी कमेटी 1986। देन PK थंगन कमेटी 1989 और एक कमेटी सरदार महेंद्र सिंह कमेटी 2013। ये पंचायती राज के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी है वो उससे रिलेटेड कमेटीज़ थी, जो कमेटी पंचायती राज सिस्टम के लिए जिसने काम किया, जो अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो बड़ा सही इसमें से देख सकते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राइट ज़िला परिषद है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। तो ये बेसिकली इस तरह से है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड दिस जिला परिषद। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया ग्राम पंचायत, पंचायती राज और जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम पूरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट, सो एट द टॉप दिस इज यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ टू काइंड्स बेसिकली। म्यूनसिपालिटी, इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत आ जाएगा। ये हम इसकी वीडियो भी अलग से बनाएंगे। राइट नाउ वी आर कंसर्न अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला परिषद, इंटरमीडिएट यानी कि ब्लॉक समिति और और क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक समिति कहते हैं राइट। और देन विलेज लेवल पे विलेज पंचायत। ये उसी स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन है आपको ज़्यादा फर्दर क्लियर करने के लिए। सबसे टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिविजन्स, सब डिविजन्स आते हैं, दैट आई विल टेल यू। और सब डिविजन्स में कई ज़िले होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूरल गवर्नमेंट के लिए ज़िला परिषद राइट, इसमें ब्लॉक लेवल आ जाएगा और विलेज लेवल आ जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है जिला का, ये वाला सिटियों में यूज़ होता है। सिटी में फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल, उसके अंदर वार्ड्स होते हैं, अलग अलग वार्ड्स। ये वार्ड का दिया हुआ है। वी आर कंसर्न विद दिस फर्दर, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज मैप ऑफ इंडिया एंड पंजाब इज लोकेटेड हियर। ओके, और यहाँ पे स्टेट बाउंड्री और कंट्री कैपिटल भी मेंशन है, जस्ट आपको बताने के लिए मैप मैंने इंक्लूड किया था। अब चलते हैं आगे। ये बेसिकली डिवीज़न से रिलेटेड है। कितने डिवीज़न है? डिवीज़न है एक जलंधर डिवीज़न, फरीदकोट, रूपनगर एंड पटियाला। 5 डिवीज़न है, 5 डिवीजन्स देयर। और जहाँ पे इलेक्शंस होती है पंचायत समिति की और ग्राम पंचायत की, सॉरी पंचायती राज सिस्टम की। अब फिर एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे एंड ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे, सॉरी स्टेट लेवल पे तो CM होते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति से कहते हैं, एंड देन विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा को चुनता है, जो कि ग्राम सभा को हम बेसिकली विलेज पार्लियामेंट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। 3 टियर सिस्टम का एक और पिक्चर इंक्लूड किया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, भूलिए मत। जिला परिषद पे डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, आंचलिक पंचायत मीन्स ब्लॉक लेवल ब्लॉक समिति, देन गांव पंचायत यानी कि विलेज पंचायत, और इसके नीचे होता है ग्राम सभा। इसको पारा या मौजा लेवल भी कहते हैं। इसमें अलग अलग जो विलेज हो जाते हैं इंक्लूड होके, फिर कई बार एक
ग्राम पंचायत बनता है एज पर द लोकेशन। तो कीप इन माइंड दिस इज 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एज राइट। नेक्स्ट नाउ वी मूव टू मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम। मेन फीचर्स क्या है नए पंचायती राज सिस्टम का? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एज ग्रास रूट लेवल। क्या मतलब? इट मीन्स कि लोकल लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन मिला है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की मंजूरी मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इसको शामिल किया गया है, पार्ट 9 में इसको शामिल किया गया है एंड शेड्यूल 11 में इसको शामिल किया गया। कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है। 243B and 243D, right? It is the main point where definition of Gram Panchayat and Gram Sabha and Gram Panchayat has been mentioned in the constitution. And 3-tier system, as I told you, right? District level पे जिला परिषद, then block samiti at block level, or that is also known as Panchayat Samiti. Then we have village level Panchayat and ग्राम सभा। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत की कंपोजिशन क्या है, कैसे बनता है वो 243C के अधीन बताया गया है कि कैसा कंपोजिशन रहेगा पंचायत का। और राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो उसके लिए कानून बनाती है, फैसले करती है। देन डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स आर चूजन डायरेक्टली। इट मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज काम करती है यहाँ पे। ब्लॉक जो पंच होते हैं उनको चुना जाता है, और जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर, उनको चुना जाता है इस तरह से। इलेक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये अलग पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्शन करवाती है, राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ MLAs एंड MPs इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। MLA और MP जो होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, they have been given the representation in local panchayat if they belong to that area. Then next point is representation to the chairman of lower level panchayats to the upper level. जैसे कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा उसको ब्लॉक समिति में भी मेंबरशिप मिलती है, रिप्रेजेंटेशन मिलती है। देन इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इलेक्शन और रिमूवल की भी बात की गई है कि हाउ वी कैन रिमूव, राइट, चेयरपर्सन। तो इट इज़ वन ऑफ द फीचर, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। Reservation of seats. If we talk about reservation of seats, provision for the reservation of the seats have been given, right, for the ladies, for SC, right, for ST communities also, and for other people also, right. For BCs also, if there is a need, fixed tenure. Panchayati Raj system has fixed its tenure, right? That is for 5 years, and election before the expiry of 5 years is necessary so that there is no gap. Next is power and responsibilities of panchayat. Panchayats
have been given different powers, that is mentioned in 243, right? And in 11th schedule it has been mentioned. It is mainly related to village activities, for example agriculture, land improvement, animal husbandry, right? And इस तरह के चीज़ें हैं जो पेंडू लेवल पे है. इवन इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेजेस, technological education, but such thing have been included in power and responsibility of the panchayat. Then power to impose taxes. Hopefully these characteristics are clear to you. If you are not able to do it, right, just comment and I will share with you more detailed description. Thank you.